Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the DMSO mediated oxidation reactions, and we know that there are variety of name reactions, going from Korn-Bloom to Moffat-Frisner to Son oxidation reaction. All these reactions, they utilize DMSO as the main source, which needs to be activated so that the oxidation can be carried out. So basically what they do, they carry out the DMSO mediated oxidation. They carry out the oxidation of alcohols to aldehydes and secondary alcohols to the ketone. So in this video we are solely going to focus on the concept part of it. Okay, we are going to take up the mechanism and we are going to look at the fine details and certain modifications of various oxidation reactions, and we are also going to talk about some of the important things that you should know, which are very important when you are going to appear for various industrial interviews or interviews in ICER or after ONGC or wherever. So those are the details that you should be aware of. So those are the things that we are going to talk in this particular video. So if you understand the mechanism, my firm belief is if you understand the mechanism, if you understand the basics, I can assure you can solve all the problems that will appear in the exams, which are based on this particular chemistry that we are going to discuss. Okay, so let's start from the DMSO. For example, the simple looking structure of DMSO is this one, right? And this is how it is also written. Okay, but these reactions, they do not take place on their own. Okay, because in reactions के अंदर DMSO needs to be activated. It needs to be activated by an electrophilic species. क्योंकि रीजन क्या है उसका? रीजन क्या है उसका? रीजन ये है क्योंकि हमारा सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इट इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ अल्कोहल है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसको अटैक करे, बट दिस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप. दिस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप. दैट इज द रीजन व्हाई द DMSO इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड बाय अ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज. तो किस तरह के हमारे एक्टिवेटिंग, इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज? तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज आपका क्या हो सकता है? ऑक्सियल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, जो कि आपका सोन ऑक्सीडेशन में होता है. आपका DCC हो सकता है, ठीक है, DCC आपका यूज होता है आपका मोफर्ट-फिज्नर रिएक्शन के अंदर. आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, यू कैन यूज एसिटिक एनहाइड्राइड, and apart from that, what else if there is anything? NCS, yes, we can use N-chlorosuccinimide. So these are the activating electrophilic species. Okay, that are used to activate the DMSO. So ठीक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर दूसरा हम सिंपल चीज कर देख लेते हैं. अगर DMSO ऑक्सीडाइज कर रहा है अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सो इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या रहा होगा? दिस विल गेट रिड्यूस, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइमिथाइल सल्फाइड. ठीक है, सो एक तरह से सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन फॉर्म क्या है आपकी? डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, और इससे भी ज्यादा फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है. दिस कैन बी ऑक्सीडाइज टू गिव यू डाइमिथाइल सल्फोन. ओके, सो दिस कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज टू डाइमिथाइल सल्फोन. सो ये थोड़ा सा इसके बारे में था. अब हम इसका थोड़ा एक्टिवेशन का देख लेते हैं, जो कि सारे के सारे मैकेनिज्म आप देखेंगे उनमें इसी तरह का एक्टिवेशन होता है. जैसे आप इनमें से कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं. लेट अस टेक ऑक्सियल क्लोराइड. ठीक है, तो एक्टिवेशन कैसे हो रहा है हम ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट यू हैव इज एन ऑक्सियल क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन. ठीक है, यहां पर हमारा क्या है? दिस इज delta negative, this is delta positive, so this is electrophilic. It comes, it attacks here, this bond moves, it comes back and chloro leaves. So this is the intermediate that you get. ठीक है, so this is what you form क्योंकि ऑक्सीजन इस पे रिएक्ट कर रहा है. Now what happens? Now you have the chloro, it is attacking the sulfur. So what is the driving force for this reaction? The driving force आप उसका reaction का क्या है? मैं हमेशा, actually this is one of the things that I always say whenever you see the
जब भी आपके रिएक्शन में से न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके निकल रहे हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, सो दोस आर द प्रोसेस दैट ड्राइव द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑल्दो अगर आप सोचें, क्लोराइड इज नॉट अ वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट फिर भी द रीजन व्हाई इट इज एबल टू अटैक, पहली तो चीज आपका क्या है कि ये पूरा का पूरा इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस एंटायर, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में विड्रॉ हो रही है, जिसकी वजह से सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आपका क्या है कि इट इज बिकमिंग वीकर। सो दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन क्लोराइड अटैक्स ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। तो दूसरा उसका रीजन क्या है कि व्हेन दिस बॉन्ड गोज हियर, ओके, so this bond actually moves here and this chloride leaves. So in the process what you are doing, you are ejecting CO2, okay, so यहाँ पर आपका CO2 and carbon monoxide and chloride ion. So what you are forming is this particular species, chloride negative, okay. So this is what I meant, that this DMSO needs to be activated. अब आप यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर एक आपका DMSO था, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि दिस सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, पर अब आपका क्या है कि दिस इज द एक्चुअल स्पीशीज। यहां पर हमारा क्या है कि सल्फर क्लोरीन बॉन्ड है, और हमको पता है क्लोरीन इज अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, इट कैन इजीली लीव। अब इसके बाद आपका जब भी एल्कोहल यहां एंटर करता है, एल्कोहल कैन इजीली अटैक द सल्फर। सो दैट इज हाउ दिस एंटायर रिएक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू एक्टिवेट इट, दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज द एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक जो बताना चाहता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज नेम रिएक्शंस, उनके डेवलपमेंट के ईयर के हिसाब से। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी कॉर्न-ब्लूम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। सो जो आपका जो फर्स्ट कॉर्न-ब्लूम ऑक्सीडेशन है, व्हाट दे डू बेसिकली, व्हाट यू टेक इज एन एल्काइल टोसाइलेट एंड व्हाट वी ऐड इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट, DMSO, and we heat at 160 degrees. So what we get is the formation of this aldehyde, right? ठीक है। अभी रिएक्शन आपका कैसे हो रहा होगा, how this reaction must be taking place. So what you have is a tosylate, here what you have is a DMSO positive, so this O negative comes, it leaves. So this is the intermediate that you form, oxygen, Me positive, tosyl is the, okay, so this is the counter anion, क्योंकि ये लीव हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कभी भी आप हमेशा एक चीज याद रखिए, whenever you will have these positive and negative charge, they will always carry a counter cation and counter cation. तो जो यहाँ से आपका tosyl लीव हियर, it will be staying somewhere close within the vicinity of this positive charge, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अब आपका ये क्या है, these are called the sulfinate anions, and they are not easy to form, ठीक है। They are very very difficult, you cannot easily form these sulfinate anions, ठीक है। So इस केस में क्या होता है, now you have is the sodium bicarbonate in the reaction, ठीक है। So what the sodium bicarbonate does, this is what it does, it abstracts this particular proton, ठीक है। ये प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये यहाँ आया, ठीक है, और ये आपका लीव कर गया। So what do you form is the aldehyde, ठीक है, प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड। So, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था, अगर DMSO ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में है तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड here in a way this is kind of an alcohol का derivative ही है, alkyl tosylate, so this is getting oxidized to aldehyde. So what were the problems that were associated with this particular chemistry? इस chemistry की problem क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो इस केमिस्ट्री की है the high temperature that you are carrying out this particular transformation at 150 degrees. So that is an issue. The second thing is the ease of formation of sulfinate anion. As I said, sulfinate anion banana, it's not very easy. It's not an easy task. It's a very difficult task, okay, to form this sulfinate anion. So that is the reason why this does not seem to a very attractive way of generating aldehyde. On top of that, आप क्या कर रहे हैं, 150 डिग्री पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, और हमको पता है कि aldehydes जो होते हैं, they are prone to undergoing a number of side reactions. उसके अलावा let us suppose if you have other groups that are sensitive to high heating condition or n number of conditions, right? So they can also be like deprotected or may undergo side reactions. Okay, इसकी वजह से ये इतना attractive नहीं है. Now let's look at the Barton modification. So Barton actually, what did Barton did? He gave a modification
to make these sulfonate anions. Okay, so what he did, that he said that instead of tosylate, what you can do is basically you can start from the alkyl chloroformates. That's what he said. That he said that don't start from the tosylate, just start from the alkyl chloroformate. ठीक है, alkyl chloroformate से जब start करेंगे, now you carry out the reaction with the DMSO. That's what he suggests. So what happens when you treat it with DMSO, जैसे कि हम देखेंगे, it attacks similarly. ठीक है, जैसे होता है ये इधर गया, फिर वो चार्ज वापस आया, and this chloro leaves. So what you form is this O oxygen and then you have this positively charged. Okay. अब इस हमारे पर्टिकुलर केमिस्ट्री में आपका क्या होता है, इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री के अंदर यू हैव दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू आर फॉर्मिंग. अब इसके अंदर भी क्या है कि आपका ड्राइविंग फोर्स इज द एलिमिनेशन ऑफ दिस CO2 जो रिलीज हो रही है. सो व्हाट डज दिस ऑक्सीजन, इट अटैक्स द सल्फर, दिस बॉन्ड कम्स हियर एंड दिस बॉन्ड मूव्स. ठीक है, तो हमारा इन अ वे आपका क्या हो रहा है, आपका ये वाला आपका बॉन्ड और आपका ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो रहा है. ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है कि हमारे वीकर बॉन्ड है जो कि हमारे क्लीव हो रहे हैं. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सल्फिनेट एनायन, राइट? ऑक्सीजन, सल्फर, sulfur positively charged. Okay, and then what you are using is triethylamine, this particular reaction. So triethylamine क्या कर रहा है, triethylamine इस प्रोटॉन को abstract कर रहा है and this is leaving. So what you are getting is the formation of aldehyde. ठीक है, aldehyde plus again DMS, we have generated dimethyl sulfide and this is the HCl sort of triethylamine. Now ये एक तरीका है. So this is alkyl chloroformate that was given by the Barton modification. Now अब इसका प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का प्रॉब्लम ये है कि आपको अल्कोहल को फॉस्जीन के साथ ट्रीट करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज द एक्सेस ऑफ फॉस्जीन. ठीक है, and phosgene by the way is very very dangerous, it is very harmful. ठीक है, काफी harmful, काफी dangerous है. इसीलिए I would not suggest कि anybody to go via this particular method, although they provide a very very good method to reach the sulfonate anion, but since it is using phosgene, that is why this method becomes less attractive. ठीक है, again during in those times when you are developing a chemistry, these methods pave way for the formation of for the development of modern and better methods. ठीक है, तो जिस तरह से दोनों के दोनों मेथड डिफरेंट थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मोफर्ट-फिज्गर ऑक्सीडेशन, जो कि हमारा क्या था, हमारा फर्स्ट DMSO बेस्ड ऑक्सीडेशन मेथड था. ऑल्दो यहां पर भी हमारा DMSO यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर DMSO को प्रॉपर ढंग से एक्टिवेट किया गया था. ठीक है, वो देखिए DMSO बेस्ड ऑक्सीडेशन मेथड, जिसके अंदर व्हाट यू यूज इज DCC. ठीक है, DCC हमारा क्या है कि डाइसाइक्लो हेक्साइल डाइकार्बोडोमाइड. ओके, ये आपका दिस इज व्हाट इट इज. सो दिस इज यूज्ड टू एक्टिवेट द DMSO. Apart from that, in this particular reaction, what you also need is a Bronsted acid promoter. BR or Bronsted. ये आपका TFA हो सकता है. ठीक है, H3PO4 हो सकता है. So these are the promoters that you need in this particular reaction to provide as a source of H+ ion. So इनका रोल क्या है कि H+ ion का सोर्स भी प्रोवाइड कर रही हैं और इनका जो काउंटर एनायन होता है दैट एक्ट एज अ बेस. अब वो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से एक्टिवेशन हो सकता है. ठीक है, दूसरी चीज, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी, दिस रिएक्शन का एक एडवांटेज क्या था, जैसे यहां पर हमने क्या किया, दिस इज एट 150 डिग्रीज आप रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, 150 डिग्री पे, और यहां पर हियर व्हाट वी आर यूजिंग इज अ फॉस्जीन. ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ एन अनअट्रैक्टिव मेथड. इसका फायदा ये था कि दिस इज यूजिंग रीजनेबली ओके कंपाउंड्स, बट यहां पर हमारा इसका क्या है कि दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम देखने के बाद वी आर आल्सो गोइंग टू सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड्स एंड हाउ अदर मेथड्स ओवरकेम दैट डिसएडवांटेज. ठीक है, वो देख लेते हैं हम क्या होता है हमारा.
तो इसका मैकेनिज्म सबसे पहले देख लेते हैं हम अगेन डीएमएसओ की, जैसे कि मैंने बोला इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेटर। यहां पर हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। So DMSO, it attacks this particular, okay. So what happens here, what you have is the, let us suppose you have this particular bronzed acid promoter PO3H2, okay. So जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया, इस वाले ने यहाँ से हाइड्रोजन प्लग कर लिया to generate this base, तो हमारा यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, O minus PO3H2, ठीक है। कभी भी आप मैकेनिज्म लिख रहे हो, सो वन ऑफ माय सजेशन इज व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ मैकेनिज्म, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम यूजफुल टू राइट व्हाट इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम। जैसे यहां से हमारा ये इजेक्ट हो रहा है, समटाइम्स क्या होता है कि उससे फायदा ये होता है कि इट मे बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या ये हमारा जो बेस इजेक्ट हुआ है या हमारा एसिड इजेक्ट हुआ है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इजेक्ट हुआ है, कैन दे प्ले सम रोल लेटर स्टेज के अंदर, इसलिए यूजफुल होता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज दिस ऑक्सीजन, दिस इज अटैकिंग अ कार्बन, सो व्हाट वी हैव इज एन NH here and this is an cyclopropyl, this is positive, ठीक है। अब हमारा इस स्टेज के अंदर हमारा क्या होता है कि नाउ व्हाट वी हैव, इसके अंदर लेट अस सपोज यू आर यूजिंग दिस अल्कोहल इन द रिएक्शन, ओके। नाउ दिस हम क्लियरली देख सकते हैं, वी हैव दिस ऑक्सीजन which is like which is connected to a carbon, so you have two nitrogen, so they are withdrawing electron density, as a result of which this sulfur oxygen bond, this is becoming weaker। और उसका भी अलावा क्या है, उसके भी अलावा what is the driving force, driving force क्या होता है कि हमारा DHU, this will get converted into dicyclohexylurea, so this is getting converted into the urea, which is a neutral byproduct, right? So this is what it gets converted into, ठीक है। DCC gets converted to dicyclohexylurea। तो यहाँ पर यही होगा जब आपका ऑक्सीजन, अब यहाँ हमारा क्या कर रहा है कि हमारा अल्कोहल है, इसको समझने का तरीका क्या है, यहाँ से हमारा ये जो इजेक्ट हुआ था बेस, what it is doing, it is abstracting this particular proton, so this proton is coming here, the oxygen is attacking sulfur, this is coming here, इसने यहां से हमारा ब्रोंस्टेड एडेज ने यहां से हमारा प्रोटॉन प्लग कर लिया, सो व्हाट इट हैज इज नाउ इज दिस वन। बहुत बहुत एक सिंपल और लॉजिकल वे होता है इसे समझने का, यहां से एसिड प्लग किया, सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो आपका क्या निकल गया, ये आपका यूरिया पूरा का पूरा निकल गया, ठीक है। सो यू हैव माइनस डाइसाइक्लोहेक्साइलयूरिया एंड यू हैव माइनस H3PO4 एंड व्हाट यू हैव इज देन व्हाट दिस वाज दी हमारा कहते हैं एक्टिवेटेड स्पीशीज था, ठीक है। अल्कोहल ने उस पर अटैक किया, R' ऑक्सीजन सल्फर मिथाइल पॉजिटिव, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, दिस इज लाइक ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। यहां से इसने प्लग किया, ठीक है। सो व्हाट इट जनरेट इज, इसने यहां से जब ये प्लग किया तो H3PO4 बना, ठीक है। ये H3PO4 यहां यूज हो गया, फिर से आपका हमारा ये क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारा O minus PO3H2, ठीक है। अब हमारा वो O minus PO3H2 हमारा फिर एक्टिंग एज अ बेस, सो दिस प्रोटॉन कम्स, इट लीव्स, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्सीडेशन। सो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन मेथड जो तरीका होता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है, इस तरह से आप लॉजिकली उसको अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एंटायर रिएक्शन सीक्वेंस इज अप्रोच्ड, ठीक है। पूरा का पूरा इस तरह से आपका अप्रोच होता है रिएक्शन। नाउ हमने यहाँ पे इसके पॉजिटिव की बात तो कर ली, ठीक है। अब इसके नेगेटिव क्या है इस रिएक्शन के, पहली चीज जो सबसे बड़ा नेगेटिव है दिस डाइसाइक्लोहेक्साइलयूरिया, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द वर्ड्स एक्चुअली बाय प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन, क्योंकि इसको निकालना रिएक्शन से कभी कभी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज द सॉलिड कंपाउंड getting rid of it via column chromatographic purification or other methods is very difficult, okay। So this is something not desirable। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, rather than DCC आप यहां पर EDCI यूज कर सकते हैं, ठीक है। EDCI which is nothing but this 3 nitrogen, this
This is the HCl salt, right? So this is the other, carbidomide that you can use. और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है that is water soluble. So that is much more safer. ये है नंबर 1. नंबर 2 आपका क्या प्रॉब्लम, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है is one of the side reactions of the by product that is forming. ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ सके what है. इसके अलावा और दूसरा चांस क्या है, ठीक है. ओह, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका क्या होता है कि सिंस यू ऑलरेडी हैव दिस पर्टिकुलर बेस, राइट, वो बेस आपका क्या करता है, बेस आपका ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है रादर देन आपका ये यहां पर आया, एंड दिस इज हैपनिंग सेम वे. तो आपका जो अल्टरनेटिव रिएक्शन सीक्वेंस है, तो आपका दिस इज दी व्हाट यू आर फॉर्मिंग. So this is what you are forming. So this is methylene sulfonium anion. ठीक है, methylene sulfonium anion, that is what is formed. So this is one of the intermediates that you also get in this particular reaction. ठीक है, अब अगर हमारा यहाँ अल्कोहल मान लीजिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर अटैक कर रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है ऐसे. So what you end up getting is the formation of these thiol type of, these thiol types of compounds. So these are the byproducts, ठीक है, जो कि रिएक्शन के अंदर आपके बनते हैं, which is not desirable. ठीक है, जो दो मेन एग्जांपल हम देख सकते हैं इसके, it's pretty straightforward. So what you're using is DMS और DCC, और हमको पता है कि जैसे ही आप मोफार्ट फिजनर का एग्जांपल देखेंगे आप समझ सकते हैं कि DMS और DCC का मतलब ही मोफार्ट फिजनर है. ठीक है, एंड इस रिएक्शन के अंदर हमें ब्रोंसिड एसिड प्रोमोटर चाहिए, which is trifluoroacetic acid. You might see that in this reaction they use pyridine as a basis reaction के अंदर. So यहाँ पे हमारा क्या है कि this is the simple oxidation that is taking place to give you this desired compound. So secondary alcohol is getting oxidized. हमारा यहाँ पर भी क्या ये वाला alcohol है. And this is the example from the carbohydrate. दूसरे के दूसरे फंक्शनल ग्रुप को, जैसे बेंजिल हो गया हमारा, ठीक है, बेंजोइल, सॉरी, दिस इज बेंजोइल एंड दिस इज TPS. So they remain untouched. TBDPS. OMe, O-benzoyl, and this is the oxidation. So here you can clearly see instead of DCC they have used EDC. Okay, EDC is, जैसा कि मैंने बोला कि EDC का जो बाय प्रोडक्ट होता है that is easily soluble in the water. So इसका बाय प्रोडक्ट आपका ये होता है. This is the बाय प्रोडक्ट of this particular reaction. ठीक है, इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है और ये बहुत आसानी से वाटर के अंदर चला जाता है. ठीक है, जब हम EDC यूज करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दी पारेख ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर पारेख ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर हमारा क्या यूज किया गया था, इसके अंदर DMSO वाज एक्टिवेटेड यूजिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड pyridine कॉम्प्लेक्स. ओके, इसको यूज करके इसे एक्टिवेट किया गया था. ठीक है, दिस इज एक्टिवेटेड reagent, we can call it. Okay, electrophilic reagent. Same पूरा का पूरा मेथड है. What you have is then SO3. This is what you have, and now what you have is a DMSO in this reaction. ठीक है, हमारा DMSO यहाँ ऐसे किया अटैक, so pyridine leaves. So what you have is okay. So this is the actual activated species that is formed. इस केस में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, हमको पता है कि सल्फर है और हमारा जो सल्फेट एनायन होता है, सल्फेट एनायन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, इस वजह से दिस बिकम्स एन एक्टिवेटेड स्पीशीज. और हमारा यहाँ पर अगर कोई भी अल्कोहल होगा या कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा, बट इट डजंट अटैक्स इन दिस पर्टिकुलर
लीव्स, ठीक है, ये आपका चला जाता है इसमें से। सो आगे आपका सेम रिएक्शन सीक्वेंस है। व्हाट यू आर यूजिंग इज बेसिकली अ बेस इन द रिएक्शन। यहां पे आपने बेस यूज किया, सो उसका बेस का रोल क्या है, बेस इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, ये इधर आया एंड दिस लीव्स, ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। हमारा जब तक इन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वन ऑफ द एडवांटेज वाज द ईज ऑफ द वर्कअप। रिएक्शन का आपका जो वर्कअप हो गया, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से दिस बिकेम लाइक वन ऑफ द गुड मेथड्स दैट पीपल यूज फॉर द ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये है इसका, ठीक है, सिंपल चीज। अगेन आप जैसे इसको देखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड DMSO in combination with the base, what you will get is the formation of this one, it's the aldehyde. So pretty straightforward. अगर आपको, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, if you understand the mechanism then you will be able to crack most of the problems. So now we are going to talk about the Corey-Kim oxidation reaction, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, what I'm going to do is basically I'm going to write the mechanism of Corey-Kim oxidation and Swan oxidation साथ साथ, and then I'm going to ask you one question, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जो कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कोरी-किम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कोरी-किम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर व्हाट दे बेसिकली, इसके अंदर दे डू नॉट यूज DMSO, दे डू नॉट यूज DMSO, बेसिकली व्हाट दे यूज इज DMS, ठीक है। सबसे पहले व्हाट दे डू, दे एक्टिवेट दिस DMS into an actual species। वो किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। सो व्हाट दे डू इज बेसिकली दे स्टार्ट डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, एंड व्हाट दे डू इज बेसिकली ट्रीट विद एनक्लोरोसक्सिनामाइड। सो इसके अंदर जो हमारा स्पीशीज इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा कोरी-किम के अंदर, वी कॉल इट NCS DMS, ओके, दिस इज एनक्लोरोसक्सिनामाइड, दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड। आपका ये सल्फर, इट अटैक्स द क्लोरीन एंड दिस leaves. So what it is, this is O negative, right? So this is leaving. So what we are forming is this species, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा सक्सिनामाइड which is left, this सक्सिनामाइड, right, what it does is basically attacks the sulfur and this chloro leaves. So in the Corey-Kim reaction, this is the actual species, that is the reactive species. So आपका this is the species जो कि आपका actual alcohol से react करता है, ठीक है। मैं यहीं पर ही रुक जाता हूं, ठीक है। Now I will jump to Swan oxidation। जो आपने देखा होगा at the start of the video I wrote down the mechanism। अब मैं फिर से mechanism लिखता हूं और मेरे कुछ सवाल मैं करता हूं, ठीक है, which is very interesting, ठीक है। Swan oxidation में we know that what we have is what we use is two equivalents of DMSO, that's अभी इसका इतना relevance नहीं है, but you should remember that we use two equivalents of DMSO and what we use is an oxalyl chloride, right? This is what we use। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। So this attacks, this comes back, chloro leaves। So important बात ये है कि S1 methyl oxygen, what you have is this one, right? And what I said, since here the chloro leaves, so the chloro comes, chloro attacks, so this comes, ठीक है, and this bond moves here and it leaves। So what it leads to the formation of is this one, right? उसके बाद हमारा क्या होता है, this is the actual species that is present in the case of Swan oxidation reaction। Now the question that I have for you guys is in the case of Corey-Kim reaction, ठीक है, हमारा इस स्टेज में, ठीक है, हमारा इस स्टेज के अंदर, in this stage, right, this is the species that is forming in this particular stage, right? तो हमारा जो अल्कोहल था वो यहां पे अटैक कर सकता था, राइट, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है, इन द केस ऑफ Swan ऑक्सीडेशन दैट अल्कोहल इज अटैकिंग दिस सल्फर एट दिस स्टेज, इसी पर तो वो अटैक कर रहा है, राइट। लेकिन यहां पर इट इज दिस स्पीशीज
which is the actual species in the case of the कोरिकिम. So जो मेरा सवाल है, ठीक है, वो है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, why this cannot be the actual species in कोरिकिम reaction. So this is one of the questions that is generally asked in the interviews, why this is not the species, jabki in the case of Swan oxidation this is the species, right, this is the actual activated species. Why in कोरिकिम this is not the species? उसका आंसर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको मैकेनिज्म की समझ है तो आप क्लियरली उनको आंसर बता सकते हो, ठीक है. आप उनको बोल सकते हो कि लिसन, इन द रिएक्शन मीडियम व्हाट वी हैव हियर इन द केस ऑफ कोरिकिम, इस तरह से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है. व्हाट वी हैव इज एन अल्कोहल, ठीक है, एंड और हमारा यहां पर क्या है कि N नेगेटिव, ठीक है. यहां पर हमें पता है कि किसी भी स्पीशीज के ऊपर अगर वो नेगेटिव चार्ज हो, इट बिकम्स मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू अ स्पीशीज व्हिच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिएक्टिव हमारा वो स्पीशीज होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है. उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन, इसका मतलब इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर मच क्लोजर टू ऑक्सीजन. सो दिस इज रिलेटिवली लेस रिएक्टिव as compared to a species which is already present in the reaction medium. ये already reaction medium में charged form में बैठा हुआ है. So rather than ये इसको अटैक करे, it attacks to form the actual species. और जैसे ही ये बनता है, ठीक है, as soon as this is formed, what is happening? Nitrogen being again electronegative in nature, उसके अलावा ये दो carbonyl group से attach है. So this is withdrawing the electron density पूरी तरह से. And what it is doing, it is making this particular weak. यहां पर भी एक और सवाल आ सकता है. They can even ask you, so why the chloride? यहां पर भी तो क्लोराइड अटैक कर सकता है, उसको लीव कर सकता है, ठीक है. ऑफ कोर्स वो बोल सकते हैं, बट अब आप उनको इस तरह से काउंटर करेंगे कि क्लोराइड, पहली तो बात है कि इट इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज गोइंग टू मेक द रिएक्शन रिवर्सेबल, ठीक है, रिवर्सेबल, इट इज गोइंग टू मेक द रिएक्शन अगर ऐसा हो. But if the oxygen attacks the sulfur, ठीक है, यहाँ पे, and if this leaves, then what you are forming in the process is a strong oxygen sulfur bond as compared to sulfur nitrogen bond, ठीक है. So this is what you end up forming. अब यहाँ पर आप क्या करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, again what you are using is a base which is like triethylamine. यहाँ से क्या किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये इधर आया, and this is going to leave. So this is how this कोरिकिम reaction takes place. Or here also in the case of Swan oxidation, what you have is an oxygen, it attacks this one, and so what you form is this. यहां में मैं एक और चीज आपको बताता हूं जो कि बहुत यूजफुल है, which you should be aware of. Okay, this is what you have now in all these reaction, जहां पर भी आपको बेस की लिखा हुआ है, बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज रिएक्शन. विदाउट बेस व्हाट हैपेंस, आपका क्या होता है बिना बेस के, आपका क्या है कि यू हैव दिस एक्टिवेटेड स्पीशीज, लेट अस सपोज इफ आई डोंट ऐड बेस, ठीक है. सो आपका रिएक्शन मीडियम में क्या है, आपका रिएक्शन मीडियम में क्या है, क्लोराइड आयन है, ठीक है. सो ये क्लोराइड आयन आपका क्या करने वाला है, बट दिस क्लोराइड आयन डज, इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो क्लोराइड आपका यहां रिएक्ट करता है, and the DMSO rather than as an activated species, it tends to behave like a solvent for this reaction. So आपका क्लोराइड यहां लीव किया, so what you form is an alkyl chloride. यहां पर भी and in this particular reaction भी जब आपका अल्कोहल रिएक्ट कर दिया, आपका यहां पर भी तो आपका क्या है कि क्लोराइड है, राइट. लेकिन जब आप यहां पर बेस यूज करते हैं, सो बेस व्हाट इट डज, इट गिव्स यू द एल्डिहाइड. सो द रोल ऑफ द बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो समटाइम्स दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज यूजुअली आस्क्ड, व्हाई डू यू नीड बेस इन Swan oxidation reaction, or why do you need a base in the कोरिकिम oxidation reaction. Now दूसरी चीज, there might be cases that you are using base in this particular reaction. जैसे कि यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं Swan oxidation की, ऐसा भी हो सकता है कि you are using base and still you are observing the formation of chlorinated product in your reaction. तो what can we do to get rid of that? हम वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे वो ना बने. उसके लिए आपकी रिएक्शन कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं. These are the reaction conditions that you can use. So what you do is basically you start from alcohol, so you take DMSO, right? So instead of oxalyl chloride, ठीक है, what you use is the P2O5. So ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप इज ट्राइथैलेमीन.
So what you get is an alcohol. So this is one of the questions again which is usually asked to the students. Let us suppose you are getting a chlorinated product. You are using a base, even then you are observing, let us say 5% or 10% of the chlorinated product. So what can you do? At that time, you must remember that you can use, instead of oxyl chloride, you use P2O5. Mechanism is exactly the same. यहाँ पर rather than chloride उसके P2O5 हमारा क्या होता है? P2O5. So this is P2O5. Again same, बिल्कुल same, कुछ फर्क नहीं है. DMSO यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट स्टेप में अटैक करके एक्टिवेटेड स्पीशीज बनाता है. इस पे अटैक किया, ये ऐसे हुआ. दिस वन okay, so this is the actual stuff that you form in this particular reaction. This is the activated species. So हमारा यहाँ पर कहीं पर भी हमारा क्लोरो काउंटर एनायन हमारा नहीं है. So यहाँ पर आपका क्या होता है? अल्कोहल. What it does, it attacks this one. So this leaves. So you do not get any of the side products, chloroside products in the reaction. तो इसका ही फायदा. ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोनों की केमिस्ट्री के. ओके, and what else? Yeah, so Swan oxidation is probably one of the most important methods. पहली चीज तो this reactions are usually carried out at low temperature like -78 most of the time. That is number one that you should remember. The second is, this is one of the useful methods which people use क्योंकि this tolerates many functional group. मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका क्या है कि काफी माइल्ड है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, you get, क्योंकि बाय प्रोडक्ट आपका डाइमिथाइल सल्फाइड है, so there is a lot of smell that you get. So that is the reason why sometimes people do not prefer it, but otherwise काफी ज्यादा माइल्ड है. This is one of the mildest method. It tolerates many functional group. Okay, tolerates many functional group. तीसरा क्या है कि इसका एक और वेरिएशन है. इंस्टेड ऑफ ऑक्सिल क्लोराइड पीपल आल्सो यूज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एनहाइड्राइड. यू माइट सी, ठीक है, समटाइम्स instead of auxiliary chloride people also use DMSO, trifluoroacetic anhydride. Again mechanism is very similar. ठीक है, so now we are going to look at some of the examples of Corichem and Swan oxidation. Few of the examples that you can see for Corichem and Swan oxidation. So the first example that we can see, what we have is an allylic alcohol. So what we are using is NCS, dimethyl sulfide and DCN. ठीक है, इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हम क्लियरली देख सकते हैं NCS और डाइमिथाइल सल्फाइड. जैसे ही हम देखें हमारे को समझ आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिकेम रिएक्शन. सो as soon as students see this, what they are going to do is, this is the product of this reaction, right? So they are going to write this product, this oxidation. This is wrong. Again मैंने क्या बोला, we have not used base in this particular reaction. क्योंकि हमने base use नहीं किया है, so the product of this reaction is going to be not the aldehyde, it is going to be this. So this is the correct answer in this particular case. क्योंकि base use नहीं किया है, so what you end up getting is the chlorination. Base is very very important in this particular reaction. So यहाँ पर अगर हमने इतना बड़ी moiety लिखी हुई है, again Corichem reaction, but we have is a secondary alcohol. This is simply getting oxidized to aldehyde. ठीक है, आपको यहाँ पर भी देखना होगा. देखिए here we are talking about auxiliary chloride, DMSO, triethylamine, and what we have is an amine. So इसका मतलब क्या है कि this secondary alcohol is getting oxidized and then this is forming imine. So this is happening stepwise. क्या हो रहा है आपका? Stepwise आपका ये बन रहा है इसमें. So this is what you are forming, and then this amine, this is reacting with this ketone to form the imine. So in this particular reaction, this is the correct answer, and NH2 So this is what we are getting. दूसरी एक्चुअली जो हमारी स्वान ऑक्सीडेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल व्हाट वी हैव इज एन अल्कोहल, व्हाट वी हैव इज अ सल्फाइड. हमको पता है कि सल्फाइड इज आल्सो प्रोन टू ऑक्सीडेशन. दिस इज आल्सो प्रोन टू ऑक्सीडेशन. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सल्फाइड का सल्फॉक्साइड बनाना है, तो पीपल व्हाट डू यू यूज इज बेसिकली मोस्टली MCPB आप यूज करेंगे. ठीक है, या तो आप यूज करेंगे कोई दूसरा पर एसिड यूज करेंगे उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए. लेकिन Swan oxidation is such a mild oxidation that it does not oxidize this sulfide. So this is a very very important example that you should
बी अवेयर ऑफ, ठीक है। केवल और केवल ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, इट डज नॉट टच दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। And in the last process, you may also come across various questions in the exam जहां पर आपको oxidation and Wittig homologation कर रहे हैं. So in this particular reaction, this is getting oxidized. So what we are forming is the aldehyde of this alcohol. In C2, Wittig homologation हो रहा है आपका. So this is what you get in this reaction. Me NH Boc और आपका इसका क्या aldehyde का oxidation हो गया. So what you are getting is this CO2ET, क्योंकि आपका एल्डिहाइड बना और Wittig homologation in C2 कर दिया. So this is the product of this reaction. Okay, so we will look at few more example of this. These Swan oxidation. These are the few simple examples that you can see. The only reason why I took this example is to show that functional groups like epoxide or these cyclopropane rings, they are tolerated using Swan. So when I say Swan, I mean DMSO oxalyl chloride triethylamine, okay, at -78 in DCM as a solvent. कुछ नहीं होता, so you can simply oxidize them as an aldehyde. And these epoxides are tolerated, मतलब इनको they do not open. So आप clearly समझ सकते हैं कि how stable and mild these oxidation conditions are. And here also, इस case में भी what you get is an oxidation. Now this is an interesting example. Sometimes what you have is such type of a diol and you written Swan oxidation. अगर आपको इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया है रिएक्शन के अंदर, सो यू प्रिज्यूम कि दोनों के दोनों अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो दिस इज दी NC6H3 and so what this is what you are forming. Okay, so what you are forming is a ketone aldehyde and then they are carrying out the Wittig homologation. अब यहाँ पर एक्चुअली मोस्टली क्या होगा, आपको मेंशन किया हो गया होगा और वैसे भी आपका जो एल्डिहाइड पे Wittig is much faster as compared to the ketone. So the product of this particular reaction is, so आपका In-situ है, it is going to go on the aldehyde. So the product that you are going to see is this. So it is going to be the conjugated ketoester that you are going to get in this particular reaction. So ठीक है. So इस पूरी वीडियो का मकसद यही था, to make you guys aware about the DMSO oxidation reaction. इसके various concepts जो है और mechanism जो involved है और आप समझ गए होंगे. It is not very difficult. और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा इस केमिस्ट्री पे, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली. एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. अगर आप तक इस वीडियो को देख के सरवाइव कर चुके हैं इतना देर तक, तो आई एम श्योर जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मेक श्योर दैट एवरीवन अवेयर्स अबाउट ऑल, एवरीवन नोज अबाउट दीज कॉन्सेप्ट. सबको पता चलना चाहिए, नॉलेज स्प्रेड कीजिए आप. ठीक है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे. बाय.